So I'm just asking, कि what can we begin with from your side about postmodernism? Anything? I give you a minute. There's no need to read anything or open the internet or any. Have you heard the word postmodernism? Yes. Where? Try to make some sense of it. The word post means after, and then they have modernism. So in this 40 minutes, modernism पे बात करना और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म पे आना इम्पॉसिबल. सो आई इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू हैव दिस बैकग्राउंड की वेयर आर वी, टाइम पीरियड, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसी से शुरू करना पड़ेगा. ऑल टर्म्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स हैव सम सिचुएशन जहाँ से वो शुरू हुआ है ना. सो द टाइम पीरियड एट लीस्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर दैट. सो द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century is usually generally considered to be the birth of postmodernism. Some people would say 1945 onwards, some would say 60s, even 70s, and in various different fields, education में, sociology में, psychology में, architecture में. And this is why the very first thing in my abstract which was provided to you, it's written, it's a multi-pronged concept. And that is one of the biggest challenges कि हम इसको किधर से देखें. First of all, it's everywhere. Secondly, this ism, this concept is not over with, not done yet, or is it? Because again, people will start fighting that now we are living in a post modernist world. We even have doubts about that. Some would say replace this word with meta modernism. And of course, the word meta जो अभी आएगा meta narrative, meta fiction में, the word meta, my pun is intended exactly where I want. Meta is Facebook का हमारा current दुनिया. The metaverse जो कि meta Facebook से भी पीछे 10 साल से already शुरू हो गया था. Some people probably really believe there is a meta. What is so? पहले तो बोलते थे यूनिवर्स है, फिर हो गया कि यूनिवर्सेस. इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटावर्स? और द कैपेसिटी, द एबिलिटी टू एग्जिस्ट. I doubt if it will be the same kind of. अच्छा, never mind. This is postmodernism in one different way, but it has changed, and my thought got broken. सुभाष जी. बट क्या बात हो रहा था? दिस मल्टीपल, और वो फर्स्ट वर्ड वही वहां पे भी लिखा है ना, मल्टी pronged, multiple coexistences. And it's not so wrong to say now कि आप लोग सोशल मीडिया पे भी एग्जिस्ट करते हो, उसके अलावा भी कहीं एग्जिस्ट. यू हैव दीज मल्टीपल आइडेंटिटीज, नॉट जस्ट बिगिनिंग टुडे बट since a few decades now. So we are looking at a phenomenon which is difficult to start with first of all. तो हम क्या करेंगे? My title says that this will go into literature more than other fields, लेकिन time is always. First thing about postmodernism is, rather than looking at the definitions, is to find the context. What would that mean? Context का मतलब होगा कि this is not just an idea which we find one fine day and start applying. Context would mean you have to trace the roots of, you have to find out कहाँ से आया है ये ultimately. And no, I'm not going to bore you with historical context. वो तो हमने already बात किया 1945/60/70 and onwards. तो मैं क्या करूँगा? These are my contents. I don't know whether these 4 chapters, I don't even call them chapters or not, cover हो पाएगा कि नहीं. We'll first of all provide context, maybe plural में contexts, ताकि ये समझ में आए कि
कि this is a theoretical concept but applicable to certain things, people, students, human beings. So context. Number 2, मैं थोड़ी देर के बाद definition, I'll try to make sense of Francois Lyotard का famous definition. Some people would claim that Lyotard is the father of bringing this, to the table, the idea incredulity towards meta narratives, वो वहाँ लिखा था. And whenever you begin or try to grapple with postmodernism, not today, maybe sometime, even in some course of yours, तो ये incredulity या ये meta narratives, ये चीज़ें आएंगी. So I'll spend 10 minutes only, okay. But फिर मैं बात करूँगा a short list of some of the concepts within postmodernism. They will, we suppose, help us to understand this concept a little more. फिर मैं वो concepts literature के point of view से ज़्यादा underline करने का प्रयास करूँगा. At the end of it, if we can, what are the criticisms of postmodernism? क्योंकि all ideas ऐसे नहीं है कि बस उसका गुणगान करना है हमें. We want to be, I mean, this is anyway a chapter of critical reasoning. So let's begin. And अभी 10-15 मिनट लगेगा to come to a definition. So you don't really need to, right now, for these 10 minutes, you don't need to look at terminology, glossary, definitions, no nothing. To introduce the context, मैं आपसे request करता हूँ, पहले सब लोग इकट्ठा सोचते हैं about ourselves, about themselves, about everybody, and what are we doing. मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ. Generally speaking, the way we are living our lives, अभी ज़्यादा पढ़ने का वो नहीं है, but I will come to it. But the way we are leading our lives, what are we doing? We spend a considerable time or period of our days on fill in the blank. So again, हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारा behavior कैसा है, filters, we are in the world of, है ना, as if we, for some time, as if we are not really happy with our own faces. We are changing them, twisting them, laughing at others, if not ours, a lot these days. वो क्यों हो रहा है? And the food, what kind of food are we eating? We have been eating food since forever. लेकिन why is this packaged food more and more prevalent, or are we packaging our lives more now? फूड को देखते हुए, द कपड़े, द टेक्नोलॉजी. तो ये थोड़ा सा इस पे मैं इसलिए देखना चाहता हूँ बिकॉज पोस्ट मॉडर्निज्म इज नॉट सम एलियनेटेड आइडिया. इट्स अराउंड यू. आपको बस ये समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट डज इट मीन. इट विल मीन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू डू, इन टर्म्स ऑफ, तो जो पूरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है बीइंग का, 1960s, 70s, 80s, 90s के बाद हमारा जो बीइंग है वो कैसे डिफाइन होता है ना, उसको देखते हुए. अच्छा, व्हाट इफ आई से, एक दो थोड़ा डिफिकल्ट लाइंस पढ़ते हैं यहाँ नीचे, यहाँ पे, कि the clothes we wear, the filters we use, the food we eat, the technology we throw at each other shows us that we are living a kind of a narrative which has been narrativized, or rather meta-narrativized by companies, brands, filters. And मैं थोड़ी देर के बाद लैंग्वेज का बात करूंगा कि linguistically how are we living in the world of emojis, for example. या not even emojis now, you know more better. आजकल वो लैंग्वेज भी चेंज हो रहा है ना. So I would like to say that before we get into postmodernism, my point of departure is that we are already living a defined, rather even a predefined life. Look at that. I mean, आजकल we use words like Gen X, Gen Y, Gen Z. What is this? Or millennials. कोई एक दो terms तो सुना होगा आपने. Some of you are generation, मुझे तो नहीं पता है कौन क्या है,
लेकिन देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट हियर. And people who were born around the millennium, when the millennium was changing, 1980s के बाद वाले जो हैं until 2000, जो उस पीरियड में हैं, जिनका जन्म हुआ है, they are called millennials. But the others, 5 साल बाद वाले, because many of you, no, not many of you, some of you were born post 2000 वाला जो था ना, this 21st century boomers ही हैं, वो Gen Z, Gen Y, Gen X and many other. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 100 वर्ष पीछे जाएंगे तो हम लोग या वो लोग एक ये टर्म यूज़ कर रहे थे, लॉस्ट जनरेशन. Who were these people or generations? Writers, this is used for people जो लोग वर्ल्ड वॉर्स के अराउंड में भटक रहे थे, सोच रहे थे, कुछ समझ नहीं रहे थे, परेशान थे, etc. We gave them a name, lost generation. You must be really happy to see कि you are not the lost generation, but ऐसा लगता है ना कुछ opposite है कि you are not lost. Why? Because you are X, you are Y, you are Z, you are millennials, you are a long list. तो लेकिन सोचने वाली बात ये है, the irony is that even if we have these labels, the truth is that we are more lost. आयरनी को थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा. एंड रादर वी, जो सोचने वाले, जो रिसर्च करने वाले हैं, दे आर नाउ लुकिंग बैक एट दोज लॉस्ट जनरेशन वाले लोग. सो वी आर, कुछ गड़बड़ चल रहा है. वी आर डिफाइनिंग, लेबलिंग आवरसेल्व्स अ लॉट, मे बी टू मच, विदाउट इवन फाइंडिंग द एसेंस ऑफ हु वी आर. मतलब वो सोचने से पहले ही वी हैव लेबल्स तैयार. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस. वी आर ऑलरेडी डिफाइंड और प्री डिफाइंड, और we are living in a kind of a meta narrativized life, patternization of our life. हर चीज़ का एक पैटर्न बन गया है. YouTube पे यूज फिल एनीथिंग और Google पे तो आपको पता है क्या, सेकेंड उसके एक बार आप कुछ फिल करोगे, subsequently you will be what, given suggestions as if they, the company, the tech, the AI knows you better than you know yourself. तो उसको हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, एल्गोरिदम. सो मैं उसको वर्ब की तरह अगर यूज करूं कि आवर लाइव्स आर नैरेटिवाइज्ड, पैटर्नाइज्ड, होमोजेनाइज्ड. होमोजेनाइजेशन क्या होता है कि एक समान, एक ही तरह का. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ होमोजेनाइटी? का ऑपोजिट क्या है? हेट्रो, राइट? हेट्रो वुड मीन मोर देन वन. सो ये आप लोगों ने सोचना है. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू सम डॉट्स इन द एयर स्पेस. तो according to some monopoly agendas of technocrats, let's say, हमारा behavior जो है वो, या मैं claim नहीं कर रहा हूँ, I am here to ask you, क्या ऐसा है? Are you all behaving in a similar way to some groups who are different from other groups? Sure, but आपका एक अपना. So in such a way we are behaving that you are not you, but you are grouped, you are clubbed, and you are algorithmized. मतलब कि हमारा बिहेवियर पैटर्न जो है वो हमारे हिसाब से नहीं है. दिस इज द ओवरऑल पॉइंट आई एम मेकिंग. ये आज से नहीं है. ईयर 2000 ऑनवर्ड्स वी हैड दिस कंप्यूटर्स का. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एआई, बट उससे पिछले वाला जो एरा था दैट वाज, अरे ये क्या हुआ टेंजन, कुछ गड़बड़ हो गया ये. लाइक एंटर योर पासवर्ड, मैंने तो कोई पास, अरे कुछ नहीं हुआ. I mean, it was a joke. What is the joke? What is the joke here? मैं यही देखना चाहता था कि कौन सुन रहा है अच्छी तरह से, but let's see. What is the joke? कि more and more हर दिन सबको क्या, you are asked this, enter your, in fact ये भी झूठ है, you are no longer even asked. क्यों? Because they are already filling your passwords now, है ना, चाहे आप मानो या ना मानो. You are not even filling the password with your own fingertips now. लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्या है कि everything based on a password, and as if किसी को कोई विश्वास. Why do you want to store your information and अब हम पता नहीं क्या होने वाला है. Like every one of us will also be passwordized, अगर उसको ऐसा just play with the word. So I mean, I'm creating a context. 10-12 मिनट में
दैट अ लॉट ऑफ जो भी आप कर रहे हो ना उसका एक डेटा बनता जा रहा है, और वो डेटा दूसरे लोग स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ताकि एक डिफरेंट एल्गोरिदम बन सके और आप लोगों को उसमें फिट किया जा सके। या 8 बिलियन पीपल हैं तो कुछ करना पड़ेगा ऐसा, एंड somebody इज रिकग्नाइजिंग दोज पैटर्न्स, सॉरी, एंड आपका जो रिस्पॉन्स है, यू टाइप समथिंग एंड द AI रिस्पॉन्ड्स। तो अब ये ज़रूरी क्यों है थोड़ा इसको, आई मीन राइट नाउ दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, द सिमुलेशन ऑफ आपका इंटेलिजेंस इज सिमुलेटेड समवेयर एल्स। व्हाट डज दैट मीन? ह्यूमन इंटेलिजेंस is considered, आपका इंटेलिजेंस is considered worthy of सॉफ्टवेयर, उसमें डाल के goes to an algorithm और फिर life will be lived in such a way कि I mean I don't need to explain, pictures say themselves कि more and more ये जो पैटर्नाइजेशन, होमोजेनाइजेशन और ये जो हो रहा है, मैं थोड़ा पीछे चल के वो दोबारा पढ़ता हूँ, दैट इसकी कोई कमी नहीं है, दैट वी आर नाउ, सो आई थिंक मेरे लिए टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म we have to first of all recognize where we are, what are we doing in a pattern or behavior, इसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा क्यों है। सोचने वाली बात ये है, AI, पहले तो AI आया, फिर जल्दी चैट GPT आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर 2-3 महीने बाद दे स्टार्टेड सेइंग अरे ये तो बहुत खतरनाक है। आई मीन जस्ट वंडर कौन बोल रहा है खतरनाक है AI, इससे कुछ भी हो जाएगा। द सेम पीपल हु ब्रॉट इट। सो इट्स ऑल प्लान्ड कि पहले लाएंगे, थोड़ी देर बाद उसकी बात करेंगे, फिर उसका फ्री वर्जन आएगा, फिर उसका, यू ऑल नो द रन, इतना कोई मुश्किल नहीं है समझना। इफ वी लुक एट इस सारी चीज़ को फ्रॉम पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो मैंने अभी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। पॉलिटिकली स्पीकिंग भी योर पैटर्न्स आर एल्गोरिथमाइज्ड और प्री डिफाइंड और नैरेटिवाइज्ड। आई मीन दिस इज एन आर्ग्यूमेंट विच मेरा नहीं है एग्जैक्टली लेकिन पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट्स ये बातें करते रहते हैं रोज़ में, है शाम में बैठ के, कि वी आर लिविंग नाउ पोस्ट वर्ल्ड वॉर्स में, द वर्ल्ड वी आर लिविंग, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होता है, आज से नहीं 50 साल से। क्यों हो रहा है? I mean, why are you bombarded with a lot of advertising? कोई बता सकता है? Of course. और do you like advertisement? ऐसे भी कई लोग हैं, मेरा favorite advertisement तो ये है, I find them discussing this, which is okay, harmless, but then देखते ही देखते you are we stop questioning कि ये क्यों आ रहा है इतना, हमें क्यों दिखाया जा रहा है of so I think in terms of your political awareness, not the political party you support. I believe you should not support any political party because you should support your own awareness. तो उसके अंदर भी देखोगे तो you will see patterns. You will see the right or the left or the center keeps on shifting. पिछले 20-30 साल में बहुत डिस्कशन हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस वाले ये बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले वाले का राइट विंग is left wing today, और उस समय का left wing becomes right wing. तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग, ये क्या हो गया, linguistically speak, so मैंने technologically, politically, very briefly to provide context, linguistically the language we are using has already changed. तो अगर आपने किसी को कहना है कि इट वॉज फन टू सी यू टुडे, मुझे सच में मुझे नहीं पता कि ऐसे कहोगे, लेकिन द इमोजीज वुड से इट मोर। और लैंग्वेज का भी जो होमोजेनाइजेशन है ना, टेक्नोलॉजी वाइज, आई मीन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट देन वी मस्ट क्वेश्चन दिस एंग्लिसाइजेशन वाला जो पूरा प्रॉब्लम है ना, कि इफ यू लुक, इट्स लैंग्वेज राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, एंड इफ यू आर ओनली लुकिंग एट वन लैंग्वेज और दिस मोनोलॉग ऑफ वन लैंग्वेज, तो फिर ह्यूमन राइट्स भी कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दिस इज वेयर ट्रेडिशन कम्स इन, दिस इज वेयर पोस्ट मॉडर्निज्म में ये कंसर्न्स इंपॉर्टेंट हैं। नाउ हाउ डज पोस्ट मॉडर्निज्म सी ऑल दीज थिंग्स जो मैं बोल रहा हूं? तो ये 2-3 टर्म्स आना शुरू होता है। ऑल्टेरिटी क्या होता है? ऑल्टरनेटिव, जानते हैं सब लोग कि सोवा रिगपा इज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। सो चाहे आप मेडिसिन में चले जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ,
postmodernism says that you must have another way of looking at something. आप लोगों ने शास्त्री थ्योरी में पोइम भी किया है ना, another view of grace, still another view of grace. किसका है वो, रामानुजन? Yes. तो बात वो हो रही है कि फॉर पोस्ट मॉडर्निज्म दिस होल होमोजेनाइजेशन जो है उसको क्वेश्चन करना है एंड ढूंढना है. यू हैव टू फिगर आउट, सोचना है कि ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना. सो मेनी रेसेस, सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी आइडियाज. तो वो सारे एक ही मतलब व्हाई डू वी हैव टू साइन अप विद मेटा or X or whatever, 2-3 companies, that's all. Like this monopoly of a single company, Google or any, they are good brands, but then उसमें problem ये हो रहा है कि आपका alterity compromise हो रहा है. Postmodernism also says that if you have, Angdor ji, if you have different points of view, या अगर हम ये सोचते हैं कि human beings come with different points of view, तो उनका एक interplay होगा, interaction होगा. इंटरडिपेंडेंस होगा कि नहीं देखेंगे, जो एक पॉपुलर वर्ड है इन बुद्धिस्ट फिलोसफी टू. बट ये इंटरप्लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वो तभी होगा अगर कई होंगे, अगर होंगे ही एक दो तो क्या होगा, इंटरप्ले, है ना, बिटवीन मल्टीपल व्यू पॉइंट्स. एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली है तो बहुत कॉन्सेप्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में, लेकिन ओपन एंडेड होना बाय द टाइम यू फिनिश अ बुक, बाय लुकिंग एट अ डिबेट. मतलब द वर्ल्ड पोलिटिकली स्पीकिंग इज हाईली पोलराइज्ड. व्हाट डज दैट मीन? ओपन एंड है ही नहीं कोई, या तो ये या तो वो, या मैं तेरा सर फाड़ दूंगा, या तुझे मुझे कुछ करना होगा. देयर आर ओनली दीज पोल्स, है ना. सो ओपन एंडेड को भी थोड़ा सा समझो कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे मूवीज है, इवन आर्किटेक्चर and philosophy and politics, do we have this open-ended space for green parties, for those, talking of political parties? नहीं है तो नहीं, but these multiplicity of meanings जो हैं postmodernism में बड़े ज़रूरी हैं. they are there क्यों? So that you ponder, so that you wonder, so that you continually create something. वो उसके बिना तो हो नहीं सकता है. In fact, मुझे तो लगता है कि क्रिएटिविटी को भी ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफरेंट नाउ बिकॉज फिल्टर्स एंड they want us not even to put an effort of clicking a picture, है ना. उसके लिए पहले ही वो फिल्टर बना है. और एंड आई वॉन्टेड टू से कि जो हमारा जिसे हम बीइंग बोलते हैं, जो सार्त्र बहुत बार बात करता है, तो वो जो होना है, करना है और सोचना, इसमें नॉलेज वर्ड, नोइंग वर्ड मिसिंग है थोड़ा सा. बीइंग, नोइंग, डूइंग एंड इन अ साइकिल. इसीलिए बोल रहा हूं ओपन एंडेड है. दिस इंटरप्लेइंग नेवर स्टॉप्स एंड मस्ट नॉट स्टॉप. पोस्ट मॉडर्निज्म इस तरह से देखता है. सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी डेफिनेशन पे आना है, जो ये क्या है नाउ, जस्ट अ फ्यू इमेजेस कि चल क्या रहा है ना, कि हम सब लोग डिफरेंट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं, ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन हम सब चले जाते हैं स्कूल में, ऑफ कोर्स कॉलेज में, ऑफ कोर्स उसको यहाँ इस इमेज में पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है तो वो देख सकते हो, सारे अलग अलग, लेकिन वी आर बीइंग होमोजेनाइज्ड. दूसरी तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म वांट्स टू आल्सो कंसिडर कि सिंगल इंडिविजुअल के अंदर भी देयर कुड बी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, है ना. कि मतलब व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी वंडरिंग कि मैं सोच रहा हूं वो क्यों सोच रहा हूं, या मैं जो आज सोच रहा हूं व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो पहले सोच रहा था. दिस शोज दैट इवन वी आर नॉट व्हाट वी थिंक वी आर. वी मे बी अगेन ऑल्टेरिटी, वी मे बी ओपन एंडेड, वी मे हैव टू इंटरप्ले विद आवर ओन. हमारा व्यू पॉइंट डेड क्यों है, वो या है या नहीं, या है कई. सो इस वाले एक इमेज में तीन चीजें हैं. वन, द इंडिविजुअल. Modernism is interested in individual, make it new. So why make it new? Because you want to bring your own individual understanding, but it becomes final. Homogenization is a problem, लेकिन postmodernism would. So ये तीन चीजें हैं यहाँ पे. Individual and the split or multiple selves within an individual,
एंड देन दिस इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल. आई मीन यू बिकम अ ग्रुप, जहाँ से हमने शुरू किया था. यू बिकम अ, हिंदी का वर्ड बोले तो भीड़, एंड यू फाइंड दीज us them in plenty today. अच्छा, in terms of language अगर देखें तो मैं interested हूँ दो quotations में of two people which I hold very dearly. The German polymath Johann Goethe. Goethe is a very important philosopher. फिर दूसरा है Wittgenstein. So Goethe 18th century if I'm not wrong. इसका एक quote पढ़ो और सोचो कि हम अभी जो बात कर रहे थे कि language rights, ह्यूमन राइट्स, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, ये बंदा क्या बोल रहा है. आई स्लो डाउन अ लिटिल, मुझे चिंता हो रहा है कि बस 40 मिनट होने वाला है, सीटी बजे. ही हु नोज नो फॉरेन लैंग्वेजेस नोज नथिंग ऑफ हिज ओन. मैंने ये क्लास में 2-3 बार दिखाया है, बट आई डोंट थिंक आई हैव सक्सीडेड इन एक्सप्लेनिंग. आप सोच सकते हो 30 सेकेंड लेके, क्योंकि एंड वी में डिसएग्री विद दिस, क्योंकि हम लोगों ने तो सीखा है कि नहीं, हम मदर टंग, अभी कल परसों ही था ना, मदर टंग इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, मदर टंग इज आवर फेवरेट. लेकिन ऐसा माहौल क्यों बने या ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट हो फॉर मे बी एनी colonial power or any brand or any technocrats whims, और मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों बने कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो फॉर एग्जांपल, या सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो, या अगर ये भी सवाल आए कि आप अपनी मदर टंग को डिफेंड नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है ना, वही करना है बस, खबरदार आपने कोई और भाषा सीखी है ना. सो these concerns are the concerns of postmodernity. Anyway, let's get back to, मैंने 30 सेकंड दिया था आपको. ये आदमी कह रहा है कि he who knows no foreign languages knows nothing of his own language. आपने सोचना है कि क्यों कह रहा है ये. Wittgenstein says the limits of my language mean the limits of my world. मुझे नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है, बट एक वर्ड तो बार बार हो रहा है, लिमिट्स. what would that mean? कई लोग बोलते हैं we are imperfect human beings, we are limited beings. Yeah, the world as we understand is also limited, and hence linguistically the language we speak is also limited. So ये Wittgenstein सिर्फ ये कह रहा है कि भूलो मत that there are limits to human being, his understanding and the language he speaks. If this is true, going to another language is beneficial, if not enlightening. Learning some things from another language brings us to the ground. It opens our eyes to new. वो जो हम ऑल्टेरिटी की बात कर रहे थे, वो लिंग्विस्टिक ऑल्टेरिटी भी होनी चाहिए. लेट मी नाउ, अच्छा हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखूं तो आई एम जस्ट रैंडमली लुकिंग एट, मैं शुरू में जाता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं. लाइक वी नीड टू लुक एट आवर बिहेवियर, आवर पैटर्न्स, आवर एल्गोरिदम्स, आवर पूरा का पूरा दिन का. आप मतलब स्थिति ये है कि आप लोग सोचते हो टाइम कहाँ जाता है, कोई और सोच रहा है कि उसने आपका टाइम टेबल कब से बना के इतना एफिशिएंटली दे दिया है कि उसको दो चिंताएं बहुत ही डिफरेंट है ना. एंड अगर सोचोगे नहीं तो in other words, simply speaking, is this okay with you to have password after password and to be on either side only, या ये या वो है ना, राइट और लेफ्ट, और ये पार्टी या वो पार्टी, या रियली आई मीन व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स न्यूएंस्ड एम्बिगुअस व्यू पॉइंट्स, वो इमोजीज में कैसे आ जाएगा. आई विल गेट टू, अभी थोड़ा लैंग्वेज पे आऊँगा. तो जो जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं विविधता, कहीं लिख सकते हो कोने में, पोस्ट मॉडर्निज्म का एक सिनोनिम विविधता तो डेफिनेटली है. व्हाट विल दैट मीन? एंड दिस इज द कंसर्न ऑफ पोस्ट मॉडर्न थ्योरी. लेट मी नाउ गेट टू सम डेफिनेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. ऑफ कोर्स लियोटार्ड, जो शुरू में बात हो रहा था, सेज पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज एन इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स. 79 में बोला है इसने. तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा, what is a meta narrative? Incredulity is not a difficult word, Namge. What is that? Incredulity? Incredulous.
बाय द वे इनक्रेडिबल यहीं से बना है, वो ज़्यादा कॉमन है ना, समथिंग जो विश्वास नहीं हो, ओह माय गॉड अनबिलीवेबल, दैट इज इनक्रेडिबल ऑल्सो, है ना. बट ऑल्सो इनक्रेडुलिटी की मतलब ना मानना. पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन द मानना ऑफ एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, लाइक ब्लाइंड फेथ्स. वो एक प्रॉब्लम है पोस्ट मॉडर्निज्म में. सो बाय डेफिनेशन वो कहता है कि देखो भाई, देखो, सोचो, कहीं आपके सामने जो जिससे आप डील कर रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वट एवर यू डीलिंग विद, कहीं वो मेटा नैरेटिव तो नहीं है. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वो होता क्या मेटा नैरेटिव. सो मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं कि पोस्ट मॉडर्निज्म डील्स विद रिलेटिविज्म. इट इज एसोसिएटेड विद, आइंस्टाइन तब से बोल गया 100 साल पहले से ही, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सारे ये जो ब्रांड है, मस्क है आपका, या आपके जो ये आपके दो फेवरेट यही है ना, इलॉन मस्क, और दूसरा जिसकी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीचेस पॉपुलर हैं यूट्यूब पे, दूसरा कौन है? they were by the way they were supposed to have a cage match, a UFC style वाला fight between Zuckerberg and Elon Musk. वो हुआ ही नहीं. वो 6 महीने से लोग वेट कर रहे हैं और मिलियंस व्यूज होंगे उसके, वो देखेंगे. एंड वी आर वंडरिंग व्हाट्स गोइंग ऑन. दीज आर बिजनेसमैन मेकिंग फूल्स ऑफ आवरसेल्व्स बाय सेइंग हम लोग लड़ेंगे आपस में, आप देखना. इफ यू डोंट बिलीव मी, फाइंड इट. उसका पूरा विकिपीडिया पेज भी बन गया. इवन विकिपीडिया इज वेटिंग, कब लड़ेंगे ये, किसका खून कितना निकलेगा. बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बस यही रह गया है जो वो दिखाएंगे. It's highly monopolized and homogenized. So postmodernism comes from this place जहाँ पे वो ऑल्टेरिटी याद है किसी को अगर पिछले 10 मिनट में, तो वो रिलेटिविटी वही चीज़ है कि वो रिलेटिविज्म मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे जो चीज़ दिख रही है यहाँ से, may look slightly different वहाँ से. So it's a relative position. By the way, the words relate, related, relationship, this is all like, this is the theory of the point of view which is not fixed, which is not an absolute final point of. तो postmodernism शुरू ही वहीं से होता है. relativism and the focus on the role of ideology. एक और शब्द आ गया, आइडियोलॉजी आइडिया से बना है. अब आइडिया, जब आइडिया फाइनल हो जाए तो वो आइडियोलॉजी बनता है ना. सिंपल थोड़ा सा करते हैं. मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, फॉर इवन फेमिनिज्म एंड एनी अदर, इवन पोस्ट मॉडर्निज्म. अगर वो अपने आप को थोप रहा है, अगर वो कह रहा है कि नहीं यही मानो, यही तरीका है, विच I believe postmodernism is not saying, क्योंकि हम सुबह से यही बात कर रहे हैं कि postmodernism saying, talking about alterity. So ideology जब बन जाता है ना, तो फिर you join the ideology, buy it, practice it without knowing. यही बात शुरू से कर रहे थे कि please look around and wonder क्या ये हो रहा है, do you see, do you agree, all this. And then ideology maintains an economic and political power. तो सारा तंत्र, सारा समाज या उनका जो पूरा पैसा है वो लग जाता है टू फिक्सेट, टू बॉक्स एंड टू क्लब एंड टू थोपो दिस आइडियोलॉजी ऑन यू. जैसे फॉर एग्जांपल आज के कल की डेट में जैसे एवरीवन इज नाउ टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी. अगला वर्जन कब आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत चीज़ें हो जाएंगी. इट्स वेरी वेग राइट नाउ. Postmodernisms are skeptical of this. Skeptical, doubtful, incredulity, right? Of any explanation anyone gives you which claims that this explanation is valid for all groups, all cultures, all traditions. सबके लिए Facebook. How many billions of users are right now signed up with Facebook? I mean, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज वी नो द पॉपुलेशन कितना है, एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड एटलीस्ट, इफ माई स्टैट इज नॉट रॉन्ग, इज ऑन फेसबुक. उसका काम ही यही है कि सबको लाना है. सो हमारा मेटा नैरेटिव फॉर टुडे इज एक्चुअली मेटा द कंपनी
एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इतनी जल्दी से मानेगा नहीं. आई मीन इफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ कैरेक्टर, तो वो इतनी जल्दी यूजर नेम पासवर्ड नहीं बनाएगा. विल बी स्केप्टिकल ऑफ दिस क्लेम. क्योंकि आई थिंक जकरबर्ग ने बोला था 2-4 साल पहले कि इफ़ यू ज्वाइन मेटा तो आपकी दुनिया बदल जाएगी और फिर आप यहीं बैठे आई मीन सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ. Instead, I kindly look at the time. Instead, postmodernism focuses on relative truths of each person. विविधता ये जरूरी है. अच्छा, ये मुश्किल बहुत है. By the end of the presentation, I will talk about the no, not failure, but criticisms. Can be question. Is it even practically possible कि हर व्यक्ति का individual, relative सच हो और पॉइंट ऑफ व्यू हो और अप्लाई भी कर रहा हो? क्या हम ऐसा जी सकते हैं? द पीपल हु अटैक पोस्ट मॉडर्निज्म, दे होल्ड ऑन टू दिस सपोज्ड वीकनेस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. थोड़ा आगे चलते हैं. हाउ डू वी लुक एट द वर्ड मेटा नैरेटिव? एंड इसकी कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन वी विल सी. बाय द वे, जैसे मेटा इटसेल्फ इज अ मेटा नैरेटिव. एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन, एक ऐसा कहानी और एक ऐसा फिलॉसफी, लेट्स से, which says that बाकी सारे जो माइक्रो नैरेटिव्स हैं, लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द वेस्ट जब कॉलोनियलिज्म होना शुरू हुआ, तो हाउ डू यू थिंक कॉलोनियलिज्म बिकेम सो सक्सेसफुल फॉर दीज हैंडफुल ऑफ कॉलोनिस्ट्स? By fabricating this narrative that's first of all dissociating the West from the rest of the world. कई बार बचपन से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, वेस्ट इज़ अ वेरी लोडेड टर्म, है ना. वेस्ट के साथ बहुत अच्छी चीज़ें जाती हैं. वेस्ट में ये होता है ना, एजुकेशन है, इक्वालिटी है, ये. सो इन लोगों ने सबसे पहले तो डिसोसिएट किया वेस्ट को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टू डिपेंड ऑन द वेस्ट, या कम टू द वेस्ट, या buy from the West or listen to the West, etc., etc. So the global South, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. बीएड में आएगा, पॉलिटिकल साइंस में आएगा. सो राइट नाउ पूरे ग्लोब में जो सदर्न, ब्राज़ील इज ऑल्सो देयर बाय द वे, है ना, एंड एशिया इज ऑल्सो देयर. तो वेस्ट डिसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द ईस्ट एंड देन टोटली डिसरिगार्डिंग द साउथ. इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें पोलराइजेशन है, इसमें चीटिंग है, यू नो, दिस इज मोनोपोलाइजेशन. सो एक ऐसा नैरेटिव जो आपको देखने ही ना दे कि आपका व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस ग्लोबल. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो एन आइडिया विच जब शुरू हुआ था तो बड़ा ही अट्रैक्टिव था. सब ग्लोबल हो जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, द होल वर्ल्ड इज जस्ट अ स्मॉल विलेज. सम क्रिटिक्स वर सेइंग दैट. अच्छा, फ्लाइट पकड़ी तो पहले मैं सिंगापुर जाऊंगा, फिर वहाँ सो ईजी. बाद में समझ में आया कि यू नो माई अटेंशन स्पैन इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू इवन सी और ऑब्जर्व सिंगापुर इन 2 घंटे एंड देन गो टू समवेयर एल्स. मैंने किया क्या है ये? यू नीड, यू नो, फ्रॉम ह्यूमन पैरामीटर्स यू नीड अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड. सो ये क्या लिखा है भाई? अ प्लेफुल एंगेज. तो ये क्या है? माइक्रो नैरेटिव्स का. A playful engagement with many diverse micro-narratives emerge in the space which is created by questioning the meta-narrative. Postmodernism में incredulity of meta-narratives का मतलब है कि anything which claims to know all or explain all, उसको give it a check. Many students like the check, है ना? We need to check. ताकि जो माइक्रो नैरेटिव्स हैं वो बचे रहें, अवेलेबल हों, ख़त्म ना हो जाएं. सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विद इन पोस्ट मॉडर्निज्म जो हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैंड आउट में दिया मैंने, एंड सम ऑफ दीज टर्म्स हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ेगा. मेटाफिक्शन क्या होता है? अ काइंड ऑफ स्टोरी जो सोच समझ के पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में आता है, जिसका एक पर्पस है. वील कम टू इट जल्दी ही. इंटरटेक्सचुअलिटी क्या, लेकिन जो भी होता है, द वर्ड टेक्स्ट इज राइट देयर फॉर यू, है ना, या टेक्सचुअल, फिर टेक्सचुअलिटी, फिर 2 या मोर टेक्स्ट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरटेक्सचुअलिटी होगा.
ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ वॉल, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, डेथ ऑफ द ऑथर, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं विद इन पोस्ट मॉडर्निज्म. अगर आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, वी बिलीव यू विल सी द पिक्चर मोर क्लियरली कि मेटा नैरेटिव क्या है, क्वेश्चन किसको करना है, कैसे करना है. Now I am going to spend a little time on some examples, क्योंकि बिना उसके बात नहीं बनेगी. I am again going back to language, I am going back to literature. थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट तो होगा ही. Half of the students or many of you have read Mandal of Sherlock Holmes, which was published in 1999, as recent as that, and this is our example of postmodern literature for today. Some of you have not read it but are going to read it maybe after this presentation or next semester. आचार्य के सिलेबस में है और शायद बीएड में होगा या नहीं भी होगा, तो जामिंग नोटबुक इज रिटन अ गुड बुक, यू कैन पिक. उसके अंदर मैं जब जाता हूँ, इट्स रिटन इन इंग्लिश, यस, बट बाय लुकिंग एट द इंग्लिश ऑफ a non-English person with an alternative point of view, हमें कुछ समझ में आ सकता है. So ये जो मैंने लिखा है linguistic inflections, inflection होता है change. Are you bringing a chit towards me? डर रहा हूँ मैं, but we'll see. अब बुक के अंदर on page 134 in the PDF I had एक पैराग्राफ आता है which I'll show you. This is the paragraph. हम सब ये रीड करेंगे. उसमें the Tibetan word, लैंग्वेज से जो वर्ड है ला, उसको उसके ऊपर थियोराइज किया गया है फ्रॉम अ पोस्ट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द मेनी मीनिंग्स ऑफ द अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ला. इट्स एन ऑनरिफिक, एंड मैं स्टूडेंट से पूछ भी रहा था, मुझे बताओ, लिस्ट बनाओ और क्या क्या मतलब है इनके. सरप्राइजिंगली स्टूडेंट्स couldn't come more than 2-3 meanings of the word ला. लेकिन वो थोड़ा सा, जैसे मैंने नीचे रफ एग्जाम्पल दिया है कि माउंटेन पास को भी ला बोला जाता है ना, या ऑनरिफिक है कुंचुकला एट्सेट्रा, और फिर गॉड के लिए भी है और सोल के लिए भी है एट्सेट्रा. थोड़ा टाइम मैं स्पेंड करूंगा सॉसियोर का सिग्निफायर सिग्निफाइड पे. कई लोग जानते हैं कि एवरीथिंग इज अ साइन, फॉर एग्जांपल अ चेयर. अब चेयर इज अ ऑब्जेक्ट बट चेयर हैज एन इमेज, बट देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेयर मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, जिसे हम सिग्निफाइड बोलते हैं. तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि सिग्निफायर से लेके सिग्निफाइड के बीच वाला जो जगह है, जो गैप है, जो स्पेस है, जहां मीनिंग मेकिंग एक्टिविटी हो रहा है. दोबारा बोलता हूं, सिग्निफायर इज समथिंग जो आप देखते हो, साइन, रेड लाइट ऑन द रोड. सिग्निफाइड इज समथिंग जो ऑलरेडी ज़करबर्ग बोल रहा है कि मेरा सिग्निफाइड ये है कि मेटा आपकी दुनिया बदल देगा सदा के लिए और कुछ करना ही नहीं है, द फाइनल मीनिंग. लेकिन इसके बीच में जो इंटरप्ले है ऑफ अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, जो मीनिंग मेकिंग कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, पोस्ट मॉडर्निज्म वांट्स टू टेक यू देयर. सो व्हेन यू रीड अ बुक, व्हेन यू वॉच अ मूवी, कोई भी चीज़ को इस तरह से मत लो कि अच्छा समझ में आ गया सारा. यू हैव टू क्वेश्चन इट फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज. एक ये, फिर हम भाषा में थोड़ा और जाएंगे, समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रोनिम्स. ये मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कुछ समझ में आएगा. देर आर सम वर्ड्स इन एवरी लैंग्वेज, मे बी नॉट इन एवरी लैंग्वेज, विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन टू अनदर लैंग्वेज. हमें इससे क्या पता चलता है? द अनट्रांसलेबिलिटी, दोबारा बोल, अनट्रांसलेटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज शोज दैट वो जो लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज याद है विटगेनस्टाइन का, वो इसीलिए है. और पिछले 20-30 साल में जो लिटरेचर या बुक्स लिखा जा रहा है ना, आप ध्यान से देखिएगा, इवन ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, उसमें आपको ओरिजिनल टर्म्स जो हैं, जैसे ला फॉर एग्जांपल, नोबडी वुड इवन ट्राई टू ट्रांसलेट इट. 100 years ago they might have translated it, क्योंकि people are more concerned now about, conscious about the untranslatables. वो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ यू प्लीज गिव मी 5-10 minutes. ये पैराग्राफ मैंने ढूंढा, आप लोग पढ़ चुके, पढ़ोगे, फिर पढ़ लेना, मैं थोड़ा रीड करता हूँ. सो आई कमेंस्ड. तो एक्चुअली क्या है कि शर्लॉक होम्स इज अ ब्रिटिश कैरेक्टर, अ डिटेक्टिव, कईयों ने उसको सीरीज में देखा है, हु गोज टू टिबेट. And then if you go to Tibet and live in Tibet for at least a year or two, you learn the language. Sherlock Holmes tries to learn the language, लेकिन उसको फिर प्रॉब्लम आता है, ये उसके बारे में है. So
one character gives lessons to Sherlock Holmes in language. He was an admirable student, usually sensitive ear, subtle tonal inflections and language generally drove most Europeans नहीं सीखते थे Tibetan language. For instance, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, द टिबेटन ला कुड मीन अ माउंटेन. अब ये चीज़ जैसे शर्लॉक होम्स ने उससे पूछा होगा कि ला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला, तो अब सिखाने वाले ने सर स्क्रैच किया होगा और बोला होगा अच्छा वेल इट कुड मीन मैनी थिंग्स. एंड मोस्टली हमारी दुनिया में वी आर नॉट यूज टू टेकिंग मल्टीपल मीनिंग्स. तो माउंटेन पास को भी बोलते हैं, और क्या है आई मीन मुझे नहीं पता, मैं टेक्स्ट में से ढूंढ रहा हूँ. एक ऑनोरिफिक है ना, जी वाला जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ टू अर्न देयर रिस्पेक्ट. किसी के नाम के साथ, गॉड के साथ, मस्क डियर के साथ, मतलब डिड यू नो. एंड यही पोस्ट मॉडर्निज्म है, टू डिग आउट इवन दोज मीनिंग्स जो हैं लेकिन ख़त्म हो गए हैं. व्हाट इज मस्क डियर को भी ला बोलता है कोई. फिर और क्या है, और क्या है, वेजेस. What is that? Even to lose something may mean la. मेरे साथ लड़ना मत, मैं तो सिर्फ टेक्स्ट को देख के मुझे तो खुद नहीं पता है. But then of course even one's soul you can confirm can be addressed some way by the word la. By the way, I know, कल मैंने confirm किया कि वो सिर्फ ला नहीं रहता है, वो थोड़ा उसमें टोन में चेंज, प्रोनाउंसिएशन में चेंज होता है. इवन यू वुड से स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है, एंड पे ग आएगा या स आएगा. वेयर इज जिग्मेचोरल, क्रेडिट टू यू फॉर ब्रिंगिंग दैट टू मी. बट शर्लॉक होम्स ऑल्सो फाउंड नो डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ, उसको जी लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन वन लैंग्वेज. लेकिन फॉर द टिबेटन लैंग्वेज इज नॉट वन लैंग्वेज बट 3 लैंग्वेजेस. ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इट्स यूज्ड इन एन ऑर्डिनरी रजिस्टर, इट्स यूज्ड इन अ फॉर्मल, कई लोग बात ही उसमें करते होंगे, और फिर और भी ज़्यादा सीरियस फॉर्मल मे बी द मोनेस्टिक लैंग्वेज, आई एम जस्ट गेसिंग. तो वो सारा उसका दे रहा है. तो अब देखो ना, अब फ्रॉम एन आउटसाइड अगर कोई इंग्लिशमैन ये सीखेगा तो विल बी ओपन माइंडेड, ओपन एंडेड, विल हैव टू इंटरप्ले ऑल दीज multiple meanings and then will consider alterity. और अगर ये सब होगा तो I think the being, the doing, the knowing will be more sensitive, more responsible even. So okay, सारा कुछ कर नहीं सकते. Languages अपने आप में ही बड़ी fascinating. अब ये सिर्फ टिबेटन में स्पेशल फीचर्स नहीं है, दूसरी भाषाओं में भी. फॉर एग्जाम्पल समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रोनिम. सिनोनिम आप जानते हो, एंटोनिम आप जानते हो, मैं उस पर टाइम नहीं, लेकिन इवन सिनोनिम्स एंटोनिम्स आर एसोसिएटिव और कनेक्टिव, की मतलब सिमिलर मीनिंग्स, ऑपोजिट मीनिंग्स. जानते हो कि कॉन्ट्रोनिम क्या होते हैं? लेट्स सी एन एग्जाम्पल. एक ही वर्ड जिसके 2 ऑपोजिट मीनिंग भी हो सकते हैं. मैं थोड़ा जल्दी में हूं लेकिन दोबारा सोचना इसको. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड डस्ट, इंग्लिश वाला वर्ड, वी आर नाउ लुकिंग ओनली, उसका एक मीनिंग है टू रिमूव डस्ट, इसीलिए आप बोलते हो आई डस्टेड माई रूम टुडे. और दूसरा मीनिंग उसका है कि डस्ट डालना, तो गंदा करना और साफ करना का एक ही वर्ड. नाउ इन द वर्ल्ड वी आर लिविंग हमें ये जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कोई इमोजी ढूंढ लेंगे और दफा करो इस कंफ्यूजन को. लेकिन जो लोग भाषा, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, फिलॉसफी से नाता रखते हैं, तो वो इन सारे अल्टरनेटिव मीनिंग्स को, ऑपोजिट कॉन्ट्री मीनिंग्स, क्लीव एक वर्ड है जिसका मतलब है ज्वाइन करना और दूसरा मतलब है डिवाइड करना. यार ये कमाल ही हो गई. एंड आई बिलीव दैट मेनी लैंग्वेजेस वुड हैव दिस फीचर ऑफ कॉन्ट्रिनिमिटी. और जैसे कि ऊपर लिख रहा हूँ कि सिनोनिम्स शो सिमिलैरिटी, एंटोनिम्स शो कॉन्ट्राराइटी, एंड कॉन्ट्रोनिम्स इज समथिंग डिफरेंट, उसमें रिवर्स हो जाता है. इसका पूरा मतलब क्या है भाई? प्लीज, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट. ऑल आई एम सेइंग इज कि यूजर, स्पीकर, रीडर, सिटीजन अगर अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, तो देन यू विल बी प्लेड अपॉन बाय द कंपनी. तो अगर आप अलर्ट हो, आप ज़्यादा मीनिंग्स ढूंढ के सीखोगे रीडिंग में से, आप ज़्यादा लैंग्वेज को इंजॉय करोगे. अदरवाइज इमोजीज की वर्ल्ड तो चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है ना. होमोनिम्स भी होते हैं, जैसे मैं उन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती. अनट्रांसलेटेबल्स. सो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं.
आई एम श्योर देर आर वर्ड्स इन टिबेटन जो नहीं ट्रांसलेट हो सकते इंग्लिश में, वो तो ठीक है, लेकिन सोदाद इज अ पोर्चुगीज वर्ड जो एक ऐसा, यू नो, यू आर होम सिक, बट व्हाट अबाउट इफ यू आर होम सिक एट योर होम? So the dictionary meaning of the word homesick is, of course, you're missing your home because you're not at home. लेकिन सोदाद एक स्पेशल पोर्चुगीज इमोशन है जो इवन फ्यूचर का नॉस्टैल्जिया, यू बिगिन टू मिस समथिंग जो अभी हुआ ही नहीं, तो सोदाद उस चीज को दिखाता है, ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ये क्या है भाई? जीविशा है, किसी ने सुना है क्या? आई ऑफ कोर्स फाउंड इट फ्रॉम द इंटरनेट। ये भी ट्रांसलेट नहीं हो सकता है इफ वी किल इट फ्रॉम, बट नहीं, वी डोंट वांट टू किल इट। क्या है ये? दिस रिफर्स टू द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव एंड कंटिन्यू लिविंग। हमारे बॉलीवुड में से कई गाने हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, वो लिसन टू द सॉन्ग पूरी तरह से। शी इज नॉट सेइंग मैं जीना चाहती हूँ, और इधर से जकबर आता है बोलता है हाँ ज्वाइन फेसबुक, जी लो। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। सो दिस कैसे इसको पहले तो समझने के लिए यू विल हैव टू इंटरप्ले बिटवीन पॉइंट्स ऑफ व्यू। वॉल्डआइनसामकाइट जर्मन वर्ड है, ये वो वाली फीलिंग है जो जंगल में जाके होती है। क्या? अ काइंड ऑफ अ लोनलीनेस एंड पीसफुलनेस अलोन विद नेचर। अब ये भी दिस इज ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स ताकि हम बात को ये समझें कि पोस्ट मॉडर्निज्म का प्रोजेक्ट ये है कि आपको स्केप्टिकल बनाना है टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, and if you are doubtful about meta narratives, you will consider the variations, the diversity, the vividata, the many meanings. मतलब सोवा रिक्पा वाले ये बात समझ सकते हैं कि the pressure of एलोपैथी है ना, वो वही है, बस वही है, बस जो भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आइए ऑपरेशन कर देते हैं। अरे प्लीज लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, इनको एग्जाम्पल्स में लेके we have like 5 minutes, I hope. Metafiction, self-reflexivity, breaking the fourth wall, intertextuality. थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, but what I want is कि ये आइडिया चलता रहे, इसके बाद भी anyone wants to continue to discuss can, but थोड़े वर्ष पहले एक बुक आया, उस बुक का नाम है द मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ दिस बुक। अजीब सा टाइटल है, बट दिस इज पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। आई वॉन्ट यू टू लुक 20 सेकेंड के लिए। अब ये कैरेक्टर सेसमी स्ट्रीट एक कार्टून होता था बचपन में, वहाँ से कैरेक्टर लेके एक नया स्टोरी बना दिया। ग्रोवर उसका नाम है कैरेक्टर का। नाउ प्लीज लिसन टू दिस स्टोरी कि द टाइटल इज मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ दिस बुक। उसके अंदर ये जो कैरेक्टर है ग्रोवर, वो बुक के अंदर एक बुक पढ़ता है, उसका टाइटल पढ़ता है द मॉन्स्टर इज एट द एंड ऑफ द बुक। नाउ दिस कैरेक्टर ग्रोवर, सुन रहे हो क्या? जस्ट 5 मिनट्स। दिस कैरेक्टर स्टार्ट्स गेटिंग अफ्रेड कि मैं ये बुक नहीं पढ़ूंगा। एक तो हम बुक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ग्रोवर इज रीडिंग अ बुक जो वो पकड़ के बैठा है, एंड लेकिन डरना शुरू हो जाता है कि देयर इज अ मॉन्स्टर, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट। विल ही नॉट रीड इट? बिकॉज यू आर द रीडर, यू विल फ्लिप द पेज, फिर आपको बोलेगा वो ये दिस इज फ्रॉम द बुक। यू टर्न द पेज, कम ऑन, लाइक तुम्हें तो पता है ना रीडर कि मैं डरा हुआ हूं। सो दिस इंटरेक्शन ऑफ द कैरेक्टर विद द रीडर ये पुराने वाले लिटरेचर में नहीं होता था। सो दिस कॉन्शियसनेस ऑफ कैरेक्टर बीइंग अ टेम्पररी फिगमेंट ऑफ मतलब वो कोई सीरियस कैरेक्टर थोड़ी है, एंड दिस स्पेस गिवन टू द रीडर टू इन्वॉल्व विद इन द स्टोरी। वो कैरेक्टर सीधा आपसे बात कर रहा है। दिस इज मेटाफिक्शन, एक तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, वो आपको फिर प्रॉमिस करता है अब तुम पेज टर्न नहीं करोगे, है ना, बिकॉज देयर इज अ व्हाट मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ द बुक। विल यू नॉट टर्न द पेज? तो आप इसको धोखा दोगे ही दोगे, आई नो, उसे भी पता है, तो देते हैं, लेट्स सी। फिर वो बोलता है यू टर्न अनदर पेज, स्टॉप टर्निंग पेजेस। तो ये उसमें से है बुक में, यू डू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग टू मी, stop turning pages. Now this is strange kind. अब ये कैसा लिटरेचर है, कौन सी स्टोरी है? The whole point is कि postmodernism wants the reader not to accept whatever is given to the reader, to question कि मुझे क्यों बता रहा है ये कि don't turn the pages, why are you turning the pages? So reader की active involvement जो है वो टेक्स्ट को मीनिंग देगा या मीनिंग्स देगा। और ये जो इंटरप्ले चल रहा है,
इस तरह से थोड़ा अगर ओके हम देख रहे थे मेटाफिक्शन में, थोड़ा ना ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल या सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी दोनों सेम सी चीज़ें हैं. बाय द वे सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन मतलब सोचना बट या कॉन्शियस होना. बट व्हाट इफ यू आर सोचोइंग और कॉन्शियस ऑफ योर ओन सेल्फ, ऐसा होता है? ऑब्वियसली नॉट रियली. द मोर फिल्टर्स यू आर यूजिंग द लेस यू आर सेल्फ रिफ्लेक्सिव, सेल्फ कॉन्शियस कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ. और ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल एक टेक्निक है जो थिएटर से शुरू हुआ था. थिएटर में कितनी वॉल्स होती हैं? जब आप ऑडियंस में, राइट नाउ यू आर, सपोज हियर इज अ स्टेज, 1 2 3, बट देर इज नो विजिबल फोर्थ वॉल. एंड पोस्ट मॉडर्निज्म सेज कि हमें फोर्थ वॉल देखनी है, उसे ब्रेक करना है. Because if you don't break it, there is a absolute final fourth wall जो आपको इंटरेक्ट नहीं करने देगी, है ना. जो भी कैरेक्टर बोलेगा या तो वो आप मान लोगे या टोटली रिजेक्ट कर दोगे, कोई बीच का रास्ता नहीं है. एंड ये जो टेक्निक है ये बुक्स में बहुत हो रहा है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मॉडल ऑफ शर्लॉक होम्स में भी होता है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल. लेकिन ये हमारे ये कैरेक्टर भी वही कर रहा है कुछ हद तक, लेकिन अ लॉट ऑफ सीरीज आर डूइंग इट, है ना. मिस ऑल्सन, हर नेम, द एक्टर, शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू द डेडपूल. आपका डेडपूल भी आपसे बातें करता है ना कभी कभी, पता नहीं मैं ये मूवी क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल देगा अजीब सा. सो दैट यू आर नॉट स्लीपिंग. दिस फोर्थ वॉल का ब्रेक करना बड़ा जरूरी है. इनफैक्ट टेक अ पॉज. रियल लाइफ में फिलोसॉफिकली स्पीकिंग देर इज अ फोर्थ वॉल विच वी डोंट ब्रेक. यही है सारा पोस्ट मॉडर्निज्म. इफ यू ब्रेक इट, यू स्टार्ट कॉन्शियसली पार्टिसिपेटिंग इन फेसबुक. फिर आप सोचते हो ध्यान से कि मैं यहां क्या कर रहा हूं. इफ यू ब्रेक द फोर्थ वॉल. सो शी रिपीटली टॉक्स. ये क्या भाई? हाँ, सो इवन बग्स बनी कभी कभी बात करता है कि मैं तो मजे में हूं, तुम इतना क्यों पेन में हो, हंसता है आप पे. दिस गाय, देयर इज अ फेमस सीन इन द ग्रेट डिक्टेटर. चैपलिन स्टार्ट सडनली टॉकिंग टू द जो देख रहा है उसको, है ना, पूरा बात करने लगता है. सो ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल अगर मैं अच्छी तरह नहीं समझा पा रहा हूं, वी नीड मोर टाइम, बट सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है कि मेटा नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए यू आर नॉट ऑन दिस अदर साइड फॉर एवर. क्योंकि दो ही साइड्स है ना, वो और मैं, आइदर और नहीं, बीच में भी कुछ है. दिस इज हाउ इट शोज इट इन ड्रामा के स्टूडेंट्स के लिए, लिटरेचर में. यू मस्ट ब्रेक द फोर्थ वॉल. अब इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम यू गो टू अ थिएटर और ऑडियंस चेयर से निकल के आप ऊपर जाके, है ना. बाय द वे एक्टर्स आर डूइंग दीज डेज. वो नीचे उतर के आके सीट्स में आपसे बात करने भी लगते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर वापस चले जाते हैं. दे नो दे हैव टू ब्रेक इट सो दैट दे रिमाइंड यू रीडर ऑल्सो टू इन्वॉल्व योर सेल्फ, ब्रेक द फोर्थ वॉल. लाइफ के बारे में सोचो ना. लाइफ क्या है? इट हैज दीज वॉल्स और सम बॉक्स. लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए यू हैव टू ब्रेक द फोर्थ वॉल. एंड आई मीन हमारा पूरा का पूरा लाइफ क्या है? अगर एक ड्रामा है तो उसमें कुछ हो रहा है, लेट्स नॉट टेक इट एब्सोल्युटली सीरियसली. वी गो, वी कम बैक, वी मूव टू एंड फ्रो, वो जरूरी है. अब फाइनली डेथ ऑफ द ऑथर. दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड आइडिया ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. बहुत लोग इसको फेस वैल्यू पे लेते हैं और वो गुस्सा करते हैं विद रोला बार्थ जिसने ये आइडिया दिया था. वो बोलता है द ऑथर मस्ट डाई. इनफैक्ट आप सोचो क्यों, ये तो बड़ी गलत बात है यार. ऑथर ने तो किताब लिखी है, वो कैसे? बट द पॉइंट यहां पे ये वो कह रहा है, द बर्थ ऑफ द रीडर इज मोर इंपॉर्टेंट. Otherwise you become this passive being भी नहीं, you're not doing anything. you इसीलिए तो कई लोग सो भी जाते हैं, बुक भी खत्म हो जाए. बुक कहाँ गया, नीचे गया, अच्छा खत्म भी होगा. अच्छा, same happens with movies or same happens in our life. We have to be like a reader who's अच्छा वो तभी होगा if the author takes a break. This is no literal death of the author, of course. And इससे ये भी पता चलता है कि there is an interdependence between the reader and the writer. In fact, ये philosopher बहुत लोग example देते हैं कि when the mother becomes a mother, of course the father or teacher or whoever, the author
अरे भाई वो ऑथर तब ऑथर बनेगा जब वहां कोई रीडर होगा. इट इज द बर्थ ऑफ द चाइल्ड विच डिराइव्स मदरहुड फॉर द मदर. फिलोसॉफिकली स्पीकिंग द क्रेडिट ऑफ मदरहुड गोज टू द चाइल्ड. थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाद में देखिए. सो द मीनिंग, जो समझ है ना, समझ ऑफ द टेक्स्ट will depend on the birth of the reader, which is an interdependence kind of a promise with the writer, the author. और राइटर आपके लिए मरेगा. मरेगा का मतलब है कि वो उसने जो बनाना था कहानी बना दिया. नाउ यू मस्ट बी अलाइव एंड एक्टिव एंड अवेयर एंड पार्टिसिपेट इन द टेक्स्ट, विद इन द टेक्स्ट. इसीलिए ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस. एंड दिस मेक्स रीडिंग टेक्स्ट एन एक्टिव exercise. Active presence of the reader must be involved, and then फिर एक space बनेगी for the interplay of alternative meanings. हमारी real life जो विविध है और जो complex है और जो nuanced है, उसमें ये सब चीज़ें दिखना चाहिए आपको कि they make sense. Otherwise it's a box closed or open. That's it. Buttons. Switch on, switch off. And log out, log in, password. This is and repeat. Coca-Cola, eat, drink, sleep, Coca-Cola, full stop, repeat, full stop. This comes from the advertisement of Coca-Cola. Finally, 3-4 finally, Sherlock Holmes का जो ये टेक्स्ट है 99 वाला, इससे आप ये सारी इंटरटेक्चुअलिटी, even the covers जो हैं उसमें आप देख सकते हो there is a mandala, there is a western character, there is also, अच्छा इसके अंदर जो कैरेक्टर्स वो किम से भी हैं. So there is an intertext. This means to say कि कोई भी situation और कोई भी life में या books में you don't have a fixed frame. You don't कुछ भी outside से alternatively participate कर सकता है. And this is why you have the covers जो westernized भी हैं, easternized भी हैं और altered भी हैं, let's say in that sense. अच्छा, मैं आपको कह रहा था ना कि इवन जामिंग नोटबुक ब्रेक्स द फोर्थ वॉल बाय द एंड ऑफ, मुश्किल है ढूंढना लेकिन आई ट्राइड इट. बाय द एंड ऑफ द बुक ये, एंड व्हेन इज द बुक टेक्स, ये स्टोरी कब एग्जिस्ट कर रहा है? शर्लॉक होम्स इन तिब्बत. इट कैन नॉट बी 2020. शर्लॉक होम्स वेंट टू तिब्बत इन 1892 और 94 टू बी प्रिसाइज. लेकिन बाय द एंड ऑफ द बुक जो कैरेक्टर है ना आए, वो लिख रहा है आई वॉज इन धर्मशाला where I was working in the education department. कहाँ पे? Of the government in exile. अब ये तो 1892 में नहीं था ना. So सोचो. So this means the writer has already broken the fourth wall, and अगर आप alert नहीं हो as a reader, तो आप एकदम से सोचोगे नहीं कि अच्छा ये वो कहानी ही थी सिर्फ, उसे बहुत ज़्यादा मेटा नैरेटिवाइज्ड सीरियसली नहीं लेना है. And in this sense बाकी आप पढ़ सकते हो. Of course, lastly, there are of course people writing books like postmodernism is not what you think, है ना. ये सारी दुनिया की सारी problems postmodernism की वजह से हैं. Fundamentalism, terrorism, post-truth, ऐसे arguments मिलेंगे. And to cover that we need at least one more class. But उसमें basically they are saying कि देखो, अगर postmodernism is about countering of meta narratives endlessly, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि फिर पोस्ट मॉडर्निज्म भी एक मेटा नैरेटिव बन जाएगा कल को, कि जो भी आप देखो उसको क्वेश्चन करो, ऑल्टरनेटिव ढूंढो एंडलेसली. आई थिंक द सेंस मेक्स सम पॉइंट ओवर देयर. सो वो पूछते हैं कि इज दिस रियली अ क्योर फॉर आवर प्रॉब्लम्स, या एक और सिम्टम है फॉर नॉट नोइंग व्हाट वी आर डूइंग हियर इन द वर्ल्ड. आई वुड लाइक टू आर्ग्यू कि ये लोग मिसप्लेस्ड, डीवैल्यूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म में जी रहे हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ थ्योरी विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क, अवेयरनेस, पेशेंस, बिकॉज यू हैव टू there is so much experimentation technique wise, linguistic wise, philosophically in some of the hardest postmodernist literature. Thomas Pynchon, Gravity of Rainbow, very वो पूरी physics ले आता है literature में. 1972, but there are many wonderful books to talk about. अगर आप ये नहीं करोगे, I'm reading the last lines, otherwise devalued and lazy readers will keep on falling for fake news, Mr. Zuckerberg, and
एंड अल्टीमेटली वो जो स्पेस है ना, जो हमेशा जीवित है, विविध है, पैल्पेबल स्पेस जहाँ पे इंटरप्ले होना है, वो तो खत्म हो जाएगी. आई गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. हम कर क्या रहे हैं आजकल? आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. एंड ऑफ क्या खत्म ही नहीं हो रहा है ये गम, खत्म ही नहीं होता है ना, कि अल्टीमेटली अगर कुछ समझना है तो लेट्स नॉट रीड द इंटायर, यहाँ से पढ़ सकते हैं कि रादर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंक, दे डोंट थिंक दैट एनी वन is objectively right. They doubt that there is one right language, that there is one right way to create art, there is one correct interpretation of any scientific experiment outside the paradigm, and dot dot dot. The dot 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 is very important in postmodernism. There is no final destination for this. Did I cover all the points? Okay, thank you. If you have questions.